آداب، کیسے ہیں آپ؟ جی فرمائیے۔ الحمدللہ۔ آپ نے ابھی بات کی ارلیئر کہ نبی صرف بنی اسرائیل کو دیے گئے ہیں، رسول اور نبی، اور کسی امت کو نہیں دیے گئے ارے نبی یار رسول۔ میں کیا کہا آپ نے، کیا عباس بھائی آپ بات کیسا سنتے یار؟ آپ نے کہا تھا کہ بنی اسرائیل میں نبی اور رسول آئے ہیں، آپ نے یہ کہا تھا ارلیئر۔ نہ میں ایسا کہا ہی نہیں، نبوت بنی اسرائیل میں رہی، میں نے یہ کہا قرآن کے ہاں مطابق نبوت جو ہے بنی اسرائیل میں رہی ہے، جب تو سے یہی بنی میں کہہ رہا اسرائیل ہوں۔ وجود میں آئی، جب سے بنی اسرائیل وجود میں آئی نبوت بنی اسرائیل میں رہی، میں نے یہ کہا۔ اچھا میں دوبارہ سے سوال کرتا ہوں، آپ کہہ رہے ہیں کیا آپ کا یہ مطلب ہے کہ نبوت بنی اسرائیل کے علاوہ کسی اور کے پاس نہیں آئی؟ میں نے ایسا کہا ہی نہیں، جب سے بنی اسرائیل وجود میں آئی، میں نے صاف طور پر کہا بنی اسرائیل کے وجود میں آنے کے بعد نبوت بنی اسرائیل میں رہی اکارڈنگ ٹو قرآن۔ اب مسلمان جو دعویٰ کرتے ہیں کہ، سن لیجئے، مسلمان جو دعویٰ کرتے ہیں کہ کوئی بنی اسماعیل تھا، مسلمانوں کے منہ بولے بنی اسماعیل والے جو ہے یہ سلسلے کو قرآن نہ تو جانتا ہے نہ پہچانتا ہے، پورے قرآن میں بنی اسماعیل کہیں بھی نہیں ہے، کہیں بھی نہیں ہے، پورا قرآن آپ بات کریں، میں کلیم کرنے لگا ہوں، آپ اس کو یس اور نو میں یا ریفیوٹ کیجئے یا ایگری کیجئے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں قرآن کے مطابق رسول رسالت سب قوموں میں آئی ہے، سب قوموں میں۔ از اٹ رائٹ اور از اٹ رانگ؟ سب قوموں سے مطلب سب قوموں سے کیا آئی ہے؟ بولو نا، سب قوم میں کیا مطلب بھائی؟ آپ کو سمجھ نہیں آئی؟ ہر قوم میں، سنیے ہر قوم میں، ارے میرے بھائی آپ پہلے سن تو لو، آپ اپنے لفظوں میں متعین رہیں قرآن کے مطابق، قرآن میں جو لفظ آئے وہ لفظ بتائیے، آپ اپنے انگریزی میں، آپ اپنے اردو میں نہیں، یہ ساری کہانیاں نہیں، آپ قرآن میں جو لفظ آئے، ارے میرے بھائی قرآن میں جو لفظ آیا ہے، آپ سنسکرت بول رہے ہیں، اس وجہ سے آپ بھی تو اردو ہی بول رہے ہیں، آپ کون سنسکرت بول رہے ہیں؟ ارے میرے بھائی میں قرآن کی بات کر رہا ہوں، ہو رہی بھائی قرآن میں آپ جو کہہ رہے ہیں وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد کہہ رہے ہیں، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ کہہ رہے ہیں، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ کہہ رہے ہیں، آپ کہنے کا مطلب کیا ہے؟ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی میں کہہ رہا ہوں وَلِكُلِّ أُمَّةٍ الرَّسُولُ، میں یہ کہہ رہا ہوں۔ ہاں تو رسول کی بات میں کہہ رہا ہوں، ہر امت کے لیے ایک رسول ہے، ٹھیک ہے، تو اوکے تو نبوت کی، سن تو لو، میں بات کر رہا ہوں نبی کی یا نبوت کی۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ نبی نہیں کہا گیا قرآن، پورے قرآن میں کہیں بھی نہیں ہے، کہیں بھی نہیں ہے، قرآن آپ کے اس نبی سے جو ہے خالی پڑا ہے، میں نبی کی بات کر رہا ہوں۔ چلیں ایک طرف تو آپ آئے، یہ تو مان لیا نا، یہ تو مان لیا کہ رسول ہر قوم میں آئے ہیں۔ ارے رسول کی بات نہیں ہو رہی، میں نے جو کہا میں اس پر ابھی بھی قائم ہوں، میں نے کہا کہ نبوت بنی اسرائیل کا خاصہ رہی ہے، بنی اسرائیل جب سے وجود میں آئی اس کے علاوہ نبوت کہیں اور نہیں تھی اکارڈنگ ٹو قرآن، یہ بات میں نے کہی ہے۔ اور ایک بات میں کہتا ہوں وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، یہ قرآن بار بار کہہ رہا ہے، لیکن قرآن ایک جگہ بھی یہ نہیں کہتا کہ جو ہے وَلِكُلِّ أُمَّةٍ نَبِيٌّ، نہیں یہ نہیں کہہ رہا، میں بات نبوت اور نبی کی کر رہا ہوں، شروع سے میرا کہنا یہی ہے، میں یہی کہہ رہا ہوں۔ مجھے اجازت ہے، ابھی آپ نے ارلیئر اپنا مدعا چینج کر لیا، ارلیئر آپ نے کہا تھا رسالت کی ہے وہ مجھے بولنے دیں یار، مجھے ٹوکے نا یار، یہ غلط کرتے ہیں آپ مسلمانوں کو ٹوکتے ہیں، غلط کرتے ہیں۔ ارے جناب آپ کو اصل میں چڑکا اس لیے گا کہ آپ کا جو منہ بولا نبی ہے نا، جس کو آپ محمد لیے پھرتے ہیں، قرآن سے ثابت نہیں ہوتا، اس کو آپ کو اصل میں وہ غم ہے، غصہ ہے، وہ غصہ آ کر یہاں نکال رہے ہیں۔ آپ لوگوں کو بولنے نہیں دیتے، آپ لوگوں کو خاموش کر دیتے اپنی آواز سے، میں نے جو آپ سمجھتے ہیں زیادہ بولیں گے آپ سچ ثابت ہو جائیں گے۔ میں نے رسول کی بات نہیں کی، میں نبی کی بات کر رہا ہوں، شروع سے میں نبی کی بات کر رہا ہوں۔ آپ زبردستی آ کے بول رہے بھائی، دیکھیں رسول کی بات تو میں نے کی بھی نہیں، ایک بار بھی نہیں کی، میں شروع سے کہہ رہا ہوں کہ نبوت جب سے بنی اسرائیل وجود میں آئی اس میں نبوت رہی، اور میں بات کر رہا ہوں نبی کی، اور ابھی بھی میں کہہ رہا ہوں قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، یعنی نذیر ہے، ہادی ہے اور رسول ہے، ٹھیک ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ، یہ بھی قرآن کہہ رہا ہے، لیکن قرآن کہیں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہر امت کے لیے ایک نبی تھا، کہیں نہیں کہہ رہا۔ میں ابھی بھی وہ بات پہلے بھی کہتا ہوں، اب بھی کہہ رہا ہوں، آگے مرتے دم تک کہتا رہوں گا، مگر یار اگر آپ بولتے رہیں گے، اگر آپ بولتے رہیں گے، ہاں بولتے رہیں گے، ظاہر اگر آپ بولتے رہیں گے تو میں آپ کو غلط کیسے ثابت کروں گا؟ غلط آپ مجھے بولنے نہیں دیتے، آپ اپنے بڑے میں آپ کو ایک منٹ میں غلط ثابت کر دوں گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ میں بیٹھا ہوں، ارے جناب میں تو غلط کروانے کے لیے بیٹھا ہوں، ثابت کرو، آپ اپنے علماء کو بولنے دینا بھائی میرے، بولو آپ چپ رہیں گے تو میں آپ کو غلط ثابت کروں گا کہ خاموشی میں کر دوں گا میں آپ کو۔ ہمت رکھیں، حوصلہ رکھیں، ثابت کرو، اب مجھے بولنے دیں، چھوٹ کر کے آگے مت بڑھو نا عباس بھائی۔ بولنے دیں، میں پرابلم یہ ہوتا ہے، سنو عباس بھائی، آپ کا میں جو پرابلم کچھ یہ ہوتا مرضی بولوں آپ نے میرے بیچ میں نہیں بولنا۔ ارے بھائی آپ جو مرضی وہ نہیں بول سکتے نا، آپ یہ اپنی مرضی سے اپنی بات کرو، آپ بول رہے ہیں کہ آپ نے یہ کہا، جبکہ یار آپ سارا دن آپ ہر سٹریم میں جھوٹ پہ جھوٹ بولتے ہیں اور آپ کہتے ہیں ہم نہیں کچھ کہہ سکتے۔ یہ حد ہو گئی ہے ہم لوگ، طریقہ نہیں ہے، یہ طریقہ نہیں ہے بات کرنے کا۔ میں اب اللہ میرا گواہ ہے، میں سچ کہہ رہا ہوں، اللہ میرا گواہ ہے، میں سچ کہہ رہا ہوں، میں بےزتی کرنے کی کوشش نہیں کر رہا، میں سچ کہہ رہا ہوں کہ آپ جھوٹ بولتے ہیں بول رہے ہیں۔ آپ کا منہ بولا نبی ثابت نہیں ہوتا قرآن سے، اصل دیکھیں نا جی سچ والا جی، آپ خاموش ہوتے ہیں، عبد الحبیب شروع ہو جاتے ہیں،
अच्छा मुझे भी निकाल लेंगे, निकाल लेंगे। आप ऐसे हौसला रखिए जैसा हौसला हमारा है। आप अपना गुस्सा बोलने दीजिए, सच निकालिए। बात उनको बोलने दीजिए। आप हौसला ऐसे रखें जैसे हम मुसलमानों का हौसला सुनने का। सुने आप, जब आपने ये बात की ना कि ये मोहम्मद, ये जो रसूल की बात हो रही है ना कि ये मोहम्मद रसूल है, ये तुम में से किसी का बाप नहीं है, इस आयत के ऊपर जब बात हो रही थी तो उस वक्त आपने ये कहा कि जो रसूल आए हैं, जो रिसालत दी गई है वो बनी इसराइल को दी गई है। उस वक्त आपने नबूवत की बात नहीं की थी। उस वक्त फिर बीच में बोल रहे हैं, फिर बीच में बोल रहे हैं। अरे मेरा बयान रिकॉर्ड में है भाई, मेरा बयान रिकॉर्ड में है। मैंने कहा कि मोहम्मद जो कहा गया है वो ईसा इब्ने मरियम का लक़ब है। मेरे अपने मकाले के मुताबिक मैंने कहा था आपका हौसला नहीं है बात सुनने का। अरे मेरे भाई, आप गलत कहेंगे तो मुझे टोकना पड़ेगा ना। और देखें, मेरी हर बात रिकॉर्ड में है। आप मेरी इन बातों को आप पीछे करें, सुन लो। मैंने जो कहा अभी भी वो मैं कह रहा हूं, क्योंकि मैं अपने लफ्जों में बड़ा स्पेसिफिक होता हूं, मुझे पता है। मैं अपने लफ्जों में इंतहाई स्पेसिफिक होता हूं। मैंने जो कहा मैं आपको फिर दोहरा देता हूं, शायद आपको याद नहीं है, क्योंकि आपके जहन में जो गुस्सा है, जो गम है, उस गम में आप मेरी बात को ठीक से ना तो सुन पाते हैं ना याद रख पाते हैं। मैं आपकी मदद करता हूं, सुन लीजिए। वहां पर मैंने जो कहा, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमन नबिय्यीन। मैंने इस आयत पर क्या कहा था, मैं फिर दोहरा देता हूं। मैंने ये कहा था कि क्या ईसा इब्ने मरियम तुम्हारे मर्दों में से किसी के बाप हैं कुरान के मुताबिक? तो हमारे भाइयों ने कहा नहीं। ठीक है, ये इस आयत का एक टुकड़ा हो गया। उसके बाद मैंने उनसे पूछा कि चूंकि नबूवत बनी इसराइल में रही है तो मुझे ये बताइए कि बनी इसराइल का खातम अन-नबिय्यीन कौन है? तो हमारे भाइयों ने जवाब दिया कि यकीनन ये ईसा इब्ने मरियम। अच्छा, ये बात जो है मैं एक सवाल कर रहा हूँ, उन्होंने जवाब दिया। उसके बाद मैंने पूछा कि क्या ईसा इब्ने मरियम रसूलुल्लाह नहीं है? तो इन्होंने जवाब दिया हाँ है, और यकीनन कुरान के मुताबिक एक नहीं, दो नहीं, 3 जगहों पर ईसा इब्ने मरियम का नाम लेकर कुरान ने उनको रसूलुल्लाह कहा है। मैंने ये कहा। आप ये मेरे इन लफ्जों को अभी 10 मिनट पहले मैंने जो कहा उसके साथ टैली कर लो। सुनने वाले सुनने वाले मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा आधा घंटा पहले रिकॉर्ड पे है। अरे अब्बास भाई डेली लाइव होती है भाई, आप कटिंग लेकर आ जाओ, ऐसी कोई मैंने सुन लिया, मैं ले आऊंगा इंशाल्लाह, लेकिन वो चले। अरे यार बात तो सुनो, अभी तक आप बता दे रहे हैं जिंदगी में क्या मैंने आपका होमवर्क नहीं किया? मैंने मुझे बार बार म्यूट क्यों कर रहे हैं? पूरी जिंदगी भर हम होमवर्क देते रहे और आप नाकाम होते रहे। कच्चे ठीक है, बार आपको मनवाया है, लेकिन आपने किसी का ना माना। आप होमवर्क कंप्लीट करके हमेशा मैंने होमवर्क आपसे लिया ही कोई नहीं है। मैंने कभी आपसे होमवर्क कोई लिया ही नहीं है। जो भी कोई बात हुई है हमेशा कटिंग लेकर आना है आपको, कटिंग लाना है। अच्छा अच्छा पर्सनल अटैक के अलावा कोई बात कर सकते हैं? आप पर्सनल अटैक करके मेरी बात को गलत साबित नहीं कर सकते। सुनिए ठीक है, आप सच वाला जी बोलने तो मुझे बोलिए, मैं वही तो बोलना, अपना गमो गुस्सा निकालिए, बोलो ना। अच्छा चले, अगर आपकी बात ये भी है कि आपने ये नबी कहा था, आपने रसूल नहीं कहा था, ठीक है, आपने ये कहा था। अब आप मुझे कुरान की कोई एक ऐसी आयत दिखाएं जिसमें ये कहा गया है कि नबूवत सिर्फ बनी इसराइल के लिए है। सिर्फ एक आयत दिखा दें, सिर्फ ये आपके एग्जैक्ट मेरे वर्ड। तो फिर अरे मैं वो कहा, मैंने कहा कि नबूवत जो है बनी इसराइल में रही है। बनी इसराइल के अलावा किसी और के साथ, यानी जब से बनी इसराइल वजूद में आई, कुरान उनके साथ नबूवत को नहीं जोड़ता। मैंने ये कहा। ये कहा मेरी बात का जवाब दें, क्या नबूवत? अच्छा सुनिए आप आपको मैंने पकड़ लिया ना, अभी बात पकड़ लिया। अरे आप जो मर्जी पकड़ो भाई, आपको कौन रोक सकता है? आप वैसे भी जो है मोमिन है, मोमिन के लिए तो 12 खून माफ है। कौन पकड़ेगा मोमिन का हाथ भाई? सारी दुनिया कांपती है आप लोगों से। मैं आपसे सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि मुझे ये बताइए कि जिसे बनी इसराइल कहा जाता है उसके आखिरी नबी कौन है? मुझे ये बताइए। बनी इसराइल के आखिरी नबी कौन थे? बनी इसराइल के आखिरी नबी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। अच्छा, उसके अलावा कोई और नबी है? बाइबल के हिसाब से तो हैं, लेकिन कुरान के हिसाब से मैं कुरान की बात कर रहा हूं, बाइबल पे जाके मैं कुरान के मुताबिक बता रहा हूं। उसके अलावा बनी इसराइल हज़रत ईसा के बाद जो नेक्स्ट नबी आए हैं वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए हैं। वो हदीस में है, कुरान से साबित करो भाई, कुरान से साबित करो। नहीं मैं आपको बता रहा हूं जो हम इस्लाम से मानते हैं। मैं कुरान ओनली नहीं, आपको ये प्रॉब्लम लग रही है कि मैं कुरान ओनली। अरे मेरे भाई, या तो आप बोलो मैं कुरान से साबित नहीं कर सकता, बस खत्म हो गई, बस खत्म हो गई। कुरान में ये बात नहीं। अरे यार मैं बात जवाब दे रहा हूं ना आपकी बात। यार आपको कमेंट्री करने का शौक है, आप सुनते क्यों नहीं अगले की बात? यार मैं आपको जवाब दे रहा हूं। वो बोलने दे तो बोलो ना भाई मेरे, वो बोलने दो, वो चुप ही नहीं करते हैं। अपना गम गुस्सा निकालिए भाई। कुरान में ये बात नहीं आई कि हज़रत ईसा के बाद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए। कुरान में ये बात नहीं है, हकीकत है। लेकिन कुरान में जो बात आई है, कुरान में ये बात आई है कि हमने नबूवत दी इब्राहिम और नूह की औलादों में से, ठीक है, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इब्राहिम और नूह की औलाद में से हैं। और साबित करो, कुरान से साबित करो भाई, कुरान से साबित करो।
कैसे बोल रहे हैं? कुरान से साबित करो। आपके जावेद गामिदी साहब की बात में मत करो यहाँ पर। आप कुरान से साबित करो कि जिसे आप मोहम्मद कहते हैं, अपना मुंह बोला नबी, कुरान से साबित करो कि वो इब्राहिम की नस्ल से। कैसा बोलेंगे आप? साबित करो। अच्छा, फिर आप वही बात कर रहे हैं। आप मुझे कह रहे हैं कि मैं कुरान ओनली मुसलमान हूँ। मैं कुरान ओनली नहीं हूँ ना, मैं सुन्नत भी मानता हूँ। इसका मतलब आप मुकदमा हार चुके हैं। आप ये बोलो कि नहीं, अपने मुंह बोले नबी में कुरान से साबित नहीं कर सकते। मुकदमा आप हारे हैं और आप बात को टाल रहे हैं। मेरी बात सुन रहे हैं आप। आपने कहा, आपने ये साबित नहीं किया कि नबूवत सिर्फ बनी इसराइल में। सुनो तो सही ना भाई, हमारे अब्दुल हमीद भाई मुझे समझ नहीं आती। कुरान में नहीं है ये बोलो ना यार। अब्दुल हमीद भाई, ये मुझे समझ नहीं आती है कि जब मैं आया हूँ तो अब्दुल हमीद भाई चुप नहीं कर रहे हैं। अच्छा, मेरे कान में आप क्यों चुप कर रहे हैं हमीद भाई? आपको लगता है सच वाला जी पकड़ गया तो आप साइड में रहे हैं? आपको क्या यार क्या पकड़े जा रहा है भाई? भी नहीं करते। अरे मैं तो शुरू से बोल रहा हूँ कुरान की बात, मैं तो कुरान की बात कर रहा हूँ ना। आप बार बार कुरान की बात, अपने मुंह बोले नबी को आप कुरान से बाहर साबित कर सकते हैं, कुरान से साबित नहीं कर सकते। अच्छा, मुझे आपके मुंह बोले नबी का कोई लेना देना नहीं है, बात खत्म। मुझे एक मिनट दीजिए। हदीस का भंडार डालो, जो मर्जी साबित कर लो। मुझे एक मिनट दीजिए। अमित भाई इनको आप म्यूट कर दें क्योंकि ये बीच में आएंगे। आई नो दैट। अच्छा, कुरान आप कुरान से ये साबित नहीं कर सके कि सिर्फ नबूवत जो है सिर्फ बनी इसराइल के लिए, ये आप साबित नहीं कर सकते। यार मैंने कहा था 1 मिनट दो मुझे, मैंने कहा था मुझे 1 मिनट। गलत जुमले मत बोलो ना आप। मैंने नहीं कहा, आप क्यों कह रहे हैं? मैंने तो ऐसा कहा। जब आप ये बनी इसराइल की बात मैंने नहीं कही। मैंने कहा कि कुरान के मुताबिक जब बनी इसराइल वजूद में आई है उसमें नबूवत रही है अकॉर्डिंग टू कुरान। मैंने सिर्फ का नोट नहीं किया। आप जो है झूठे लफ्ज मेरे मुंह पे ना डालो प्लीज। आप अपनी बात रखो, अपनी बात रखो। 1 मिनट नहीं 2 मिनट बोलो अब्बास भाई, लेकिन आप अपने बोलने में ये मत करो कि आप हार गए, आप झूठे साबित हो गए। 2 मिनट में ये नहीं बोलना है आपको। चलिए ठीक है, मैं ये नहीं कहूंगा कि आप हार गए, मैं नहीं कहूंगा कि मैं उनको पर्सनल अटैक नहीं करूंगा। ओके, नो प्रॉब्लम। लेकिन मैं अपनी बात रख दूंगा, मेरा मुद्दा रखने थे। बात ये कि जब इन्होंने ये बात की कि बनी इसराइल को नबूवत दी गई, ठीक है, कोई से इनकार नहीं करता। इसका क्या मतलब था कहने का? जबकि इनके मुताबिक ये साबित नहीं है कि बनी इसराइल ही को नबूवत दी गई और किसी को नबूवत नहीं दी गई। इस बात का मतलब बनता ही नहीं है। अगर तो इस बात को साबित कर दें, क्योंकि इस बात को साबित नहीं, अगर नबूवत सबको दी गई तो ये बात करने वाली क्या है? हम तो मुसलमान मानते हैं कि बनी इसराइल को नबूवत दी गई है, लेकिन हम ये भी मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी नबी हैं, बनी इसराइल से नहीं है। तो ये बात करने का क्या फायदा है? नहीं, इस बात करने का क्या तुक बनता है? अगर नबूवत सबको मिल गई। मैं खाली हंसूंगा, मैं हंस रहा हूं यार। अरे मैं बात प्रॉब्लम है। नहीं, ये कुरान में ये नहीं है, आप बोलो कि नहीं है कुरान में। तो इन्होंने ऐसी बात क्यों की है कि नबूवत बनी इसराइल को दी गई है? क्या वजह थी बात करने की? मैंने गलत कहा। नहीं, अगर मैं ये कह रहा हूँ, मैं ये वाज़ेह करना चाह रहा हूँ कि आप ये कह रहे हैं कि नबूवत सिर्फ बनी इसराइल को दी गई है, क्या आप ये कह रहे हैं? मेरे भाई, जब से बनी इसराइल वजूद में आई, नबूवत उसके पास रही है, मैं ये कह रहा हूँ। और ये बात अभी भी कह रहा हूँ मैं। नहीं, तो फिर सुन तो लो। देखें, बनी इसराइल के वजूद में आने के बाद अगर नबूवत किसी और को दी गई तो मुझे उसका नाम बताओ, कौन है, किसको दी गई, कौन तो है? एक सेकंड सचवाला जी। अब्बास भाई, सचवाला जी ने आपसे पूछा बनी इसराइल का आखिरी नबी कौन है? आपने कहा ईसा इब्न मरियम, ठीक है? बिल्कुल ठीक है। फिर उसके बाद सचवाला जी ने कहा कि भाई इसके बाद कौन सा नबी आया? तो आपने कहा मोहम्मद आए। तो फिर कहा कि आपको कुरान में से बताना है, तो आप वो बताने से कासिर है। नहीं, बहुत सारी चीजें जिसको कुरान से साबित कर सकता हूं, लेकिन वो एग्जैक्ट लफ्ज मांग रहे हैं। बहुत सारी आयत है। कुरान की आयत मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं देता हूँ आपको 2 आयतें देता हूँ मैं, उससे बात मैं बेचैन हूँ। 2 आयत देते हैं, मैं पहले आपको देता हूँ। जी, मैं 2 आयत दूंगा, उससे साबित हो जाएगी बात मेरी। अगर आपका दिल खुला होगा समझ आएंगे। सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 7 खोलें। 33 की वर्स 7। जी, ओके। 2 आयत आपको मैं पढ़ने को कहूंगा, उसके बाद फिर अपना मुद्दा रखूंगा इंशाल्लाह। पहले आप पूरी पढ़ लो भाई, आप पहले पढ़ लो, फिर सचवाला जी पढ़ेंगे। मैंने तो पढ़ ली हुई है ना, मैं आपको कहना पड़ेगा, स्क्रीन पे लगाएं वो उसको आयत को पढ़ें। हाँ, तो आप बोलिए ना क्या बोलना चाह रहे हैं। अच्छा ठीक है, लगाइए क्या कहना चाह रही हूँ, तो हम देख लेंगे। यार मैं फोन पे हूँ, अगर मैं उस पे जाऊंगा, कुरान पे जाऊंगा तो वो ना गायब हो जाएगी मेरी आवाज आपकी स्क्रीन से। गायब हो जाएगी। आप दुआ करके नहीं आए लगता। आप अल्लाह की मदद मांग के नहीं आए, दुआ करते रहते हैं। अभी तक आपकी दुआ कबूल नहीं हुई। अल्लाह की मदद तो दिल से मांगता हूं हमेशा। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन लिसानी। ये इस तरह की दुआ करें ना आप। ये पढ़ें यार, इस आयत का क्या मतलब है? तो आप बताइए, पढ़ के बताइए इसमें क्या साबित करना चाह रहे हैं। आप पढ़िए ना, भी आपके सामने है जी। स्क्रीन पर है ना भाई, क्या लिखा है इस पे? बोलो क्या है, बोलो। थोड़ा बड़ा करेंगे, थोड़ा बड़ा करेंगे इसको। मैक्सिमम बड़ा है ना भाई, और कितना बड़ा करना है? चलो ये ले। अच्छा, आप पढ़िए। और याद रखो उस अहद व बयान को जो हमने सब पैगंबरों, इधर नबियों की बात हो रही है, रसूलों की बात नहीं हो रही, सब पैगंबरों से लिया है, तुमसे भी। और इसमें पैगंबर है कहाँ, ये बताइए।
नबीयीन, अरे नबियों की बात जो है, नबी को पैगंबर कहते हैं। तो मैंने वही कहा ना कि मैंने वही कहा भाई। तर्जुमा करने भी नहीं, अरे भाई अरे यार मैंने कहा नहीं, नहीं आता यार मैंने कहा नहीं, मैंने कहा अरबी में नबी लिखा हुआ है। लड़ने आ जाते हैं, मेरे को हैरत होती। अरे यार आपके मुतरजिमा को यार तर्जुमा करने भी नहीं आप आता। अरे क्या बात कर रहे हो? मैंने कहा है अरबी में नबी लिखा हुआ है, मैंने कहा है अरबी में नबी लिखा हुआ है। कैसा लिखते हैं आपके मुतरजिम? तो मैंने वाज़ेह किया है, मैंने वाज़ेह किया है ना, मैंने वाज़ेह किया ना, नबी लिखा। आप नबी की बात कर रहे हैं ना, आगे चलिए, बात नबियों की बात हो रही है ना, मेरी बात साबित ज्यादा हुई, नबी अरबी में नबी है। ठीक है, हम भी तो वही कहना चाह रहे हैं ना, आप कीजिए ना, क्या कहना चाह रहे हैं? आप लोगों को प्रॉब्लम क्या है यार? ओके मैं दोबारा से पढ़ता हूँ। और याद रखो उस अहद को जो बयान जो हम वो छोटा हो गया जी। अरे इतना बड़ा याद रखो, छोटा हो गया बोल रहे हैं जी। मैं यार फोन पे हूँ यार, मैं बात। ओके याद रखो उस अहद को जो बयान लिखा है, क्या लिखा है? अरे उर्दू में नहीं पढ़ सक रहे हैं यार आप? अरे यार मैं छोटा है जो इतने ज्यादा बूढ़े तो नहीं हो गए, मेरी तरह बूढ़े तो नहीं है आप, मेरी तरह बूढ़े तो नहीं है आप, एक सेकंड है अभी। और याद रखो उस अहद व पैमान को जो हमने सब नबियों से लिया है, तुमसे भी और नूह और इब्राहिम और मूसा और ईसा इब्ने मरियम से भी, सबसे हम पुख्ता अहद ले चुके हैं। इस आयत से वाज़ेह हुआ कि जिससे अल्लाह ताला मुखातिब है वो ईसा नहीं है, वो ईसा नहीं है, कम से कम वो ईसा नहीं है, ये वो ईसा नहीं है, किससे बात हो रही है? वो ईसा नहीं है। जैसे आप कहते हैं ना कुरान का नबी ईसा है। अरे मैंने नहीं कहा यार, मैंने कुरान का नबी को ईसा कभी भी नहीं कहा। झूठ क्यों बोलते हैं आप? क्यों झूठ बोलते हैं? नहीं आप कह रहे हैं जब मोहम्मद आता है उसका मैंने कभी भी नहीं कहा। अरे आपने भी कहा, झूठ बोलते हैं यार। अरे यार आपने कहा झूठ बोलते हैं। क्या कहा? यार मुझे बोलने दो यार, मैं क्या मैंने कहा कुरान का नबी ईसा? मैंने ऐसा कहा? मैंने ऐसा मुझे बोलने दो, आपने बहुत सारी पहली कहा। मैंने ऐसा कहा ही नहीं। अल्लाह अकबर या अल्लाह। मुझे क्या मैंने ऐसा सुन लो जरा, क्या मैंने ऐसा कहा कि कुरान का जो हाजिर नबी है वो ईसा है? ऐसा कहा मैंने? ऐसा कहा आपने पास में कहा, आज नहीं कहा, लेकिन पास में आपने कहा। अरे मेरे भाई मैं कह रहा हूँ मोहम्मद की बात, लेकिन मोहम्मद हाजिर नबी नहीं है, मैं ये कह रहा हूँ बार बार। आप पता नहीं कंफ्यूज हो गए, वो कंफ्यूज इस वजह से हो गए कि मोहम्मद तुम में से किसी मर्दों का बाप नहीं है, तो आपने कहा क्या ईसा किसी तुम में से मर्दों का बाप है? जाहिर बात है। मैं अच्छा उसी वक्त मैंने ये भी कहा ना अब्दुल हमीद साहब, मैं बार बार मैं ये बात करने वाला था, आपने मेरे मुद्दे पे बात कर दी। कुरान सुन तो लो यार, ये मुश्किल आपकी मुश्किल क्या है हमारे अब्बास भाई? आपकी मुश्किल ये है कि आपने अपने मुंह बोले नबी का नाम मोहम्मद समझ लिया है कुरान के अंदर, हालांकि कुरान में आपका मुंह बोला नबी का नाम मोहम्मद नहीं है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कुरान का जो हाजिर नबी है जो भी है, कुरान बार बार उसको हाजिर के सेगों में इस्तेमाल करता है, हाजिर की जमीरों में इस्तेमाल करता है, एक नहीं 50 बार, सैकड़ों बार। या अय्युहन नबी, या ईसा इब्ने मरियम नहीं है, ईसा इब्ने मरियम नहीं है। ये एग्जांपल से वो कंफ्यूज हो गए कि आप बोलना चाह रहे हैं कि भाई ये ईसा इब्ने मरियम से मुखातिब है, जबकि वो दो सेंटेंस ये मोहम्मद की बात कितने बार कह रहा हूं मैं जी, कितने बार कह रहा हूं? वो दो सेंटेंस दोनों क्वालिफिकेशन में ईसा इब्ने मरियम और मोहम्मद दोनों भी फिट बैठते, ऐसा एक मौजना चल रहा था अब्बास भाई। ऐसा नहीं कहा कि कुरान का हाजिर नबी ईसा इब्ने मरियम, ये नहीं कहा सच वाला जी। और मैंने कभी भी नहीं कहा, आप अब्दुल हमीद साहब इतने बार मेरे साथ हैं, मैंने कभी भी नहीं कहा और कह भी नहीं सकता मैं, यह है भी नहीं। अब्दुल हमीद भाई मैं बिल्कुल कंफ्यूज नहीं हुआ, मैं बड़ा क्लियर हूँ अपनी बात में, बहुत क्लियर हूँ, आप मेरी बात करने नहीं दे रहे। मैं ये अच्छा मेरा ये सवाल जो है ना, अगला सवाल ये है वाज़ेह करने के लिए, क्या मोहम्मद जो सा है वो ईसा है? कुरान का मोहम्मद क्या वो ईसा है? देखें मेरे मुताले के मुताबिक जो लफ्ज़ मोहम्मद है वो किसी शख्सियत का मारिफा इस्म नहीं है, ये मेरा अपना मुताला बता। हो सकता है आप इससे इख्तलाफ करें, क्योंकि ये मोहम्मद जो लफ्ज़ है कुरान में जहाँ जहाँ भी आया है उसके सेगे, उसकी ज़मीरें सारी की सारी गायब की हैं। एग्जैक्टली इसी तरह जिस तरह से लफ्ज़ मोहम्मद जिस किसी का भी लक़ब या उर्फियत थी वो गुजर चुका और कुरान का मतन बाद में लिखा गया। ये मेरी अपनी तहकीक है, आपका अकीदा आपके साथ है, लेकिन मेरी तहकीक जो मोहम्मद कहा गया है कि मोहम्मद किसी का बाप नहीं है, वो क्या मतलब है उसका? उस बात का अरे भाई जो मैंने समझा लोगों के सामने पेश किया, अभी आप चाहें तो इससे इख्तिलाफ करें। नहीं मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ क्या मतलब है कि मोहम्मद आपने से किसी मर्दों का बाप नहीं है, इसका क्या मतलब है? जी आप बताओ। कोई शक नहीं है, अगर वो कोई शक भंडार है, जाहिर बात है आप जो मर्जी कहेंगे। मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, इनसे पूछो ना क्या मतलब ले रहे आप? मोहम्मद मर्दों का बाप नहीं का मतलब क्या है? जी वो उन्होंने कहा कि क्या समझते आए भाई अभी तक? बोलो ना, आप क्या समझे, बोलो ना भाई। बहुत जल्दी घबरा जाते हैं यार आप। अल्लाह क्या बात है, आप आगे पैर कांप रहे मेरे अब्बास भाई, आप आगे जाइए। मोहम्मद की झूठी कहानी पे रोए जी। अच्छा आप अपने दिल को साफ कर लेंगे, अगली आयत खोलें, अगर आप दिल को साफ करके पढ़ते हैं आयत देखते हैं कि आप दिल भी साफ है, दिमाग भी साफ है, इससे आप कुछ भी साबित नहीं कर सके। क्या साबित हुआ बताइए? आपने ये आयत पेश की, इससे क्या साबित हुआ ये बताइए ना अब्बास भाई, क्या साबित हुआ? जब से मैं आया हूँ स्ट्रीम में, एक बात तो वाज़ेह हो गई
کہ بنی اسرائیل کے لیے ہی نہیں صرف نبوت کی بات میں کیا ہی نہیں نا, میں نے کہی نہیں, میں نے ایسے نہیں کہا, آپ نے ایک کوشچن بنایا, الفاظ میرے منہ میں ڈال رہے ہیں, میں نے تو ایسا کہا ہی نہیں. تو پھر بنی اسرائیل کے باہر بھی نبی ہو سکتا ہے, تو محمد بھی نبی ہو سکتا ہے. قرآن سے ثابت کرو نا, قرآن سے ثابت, بنی اسرائیل کے بعد نبی آیا, اس کو بنی اسرائیل میں ہونے کی ضرورت نہیں ہے. مان لی آپ کی بات, مان لی. بتاؤ قرآن میں کہاں ہے, ضروری نہیں ہے قرآن میں بتاؤ. اگلی آیت سے ثابت کروں گا انشاءاللہ کہ اچھا اس سے ثابت نہیں ہوا, چلو ٹھیک ہے, اچھا سنو, اس سے ثابت کچھ بھی نہیں ہوا. اچھا اگلی آیت پہ جائیں گے ہمارے ابا. اب یہ چھوٹے چوچلے کر کے آپ سمجھتے ہیں بحث جیت جائیں گے, چھوٹے سے چوچلے کر کے. بھائی بخشے بخشائے ہیں آپ عباس بھائی, چلو اس میں کیا ثابت ہوا بولو, آگے کیا ہے. اچھا اس سے کیا ثابت ہوا بتائیے نا, اس سے کیا ثابت ہوا, آپ نے یہ آیت نکلوائی, ایک تو آپ کی آواز بہت دور ہو گئی, کیوں کیا ہوا, آپ بہت دور سے بول رہے ہیں, کیا قریب آئیے بھائی, اتنا کیوں گھبراتے ہیں یار, میرے ہاتھ میں تلوار نہیں ہے, میرے ہاتھ میں مومنانہ تلوار نہیں ہے بھائی, شمشیر بے نیام سچوالا کے ہاتھ میں نہیں ہوتی, یہ مومنوں کا چہے شیوا ہے, شمشیر بے نیام. آپ کو کہا تھا میں 2 آیتیں دوں گا, آواز آ رہی ہے آپ کو میری؟ اچھا اس کا مطلب یہ آیت سے ثابت نہیں ہوا, کچھ بھی ثابت نہیں ہوا. میں نے کہا تھا آپ کو 2 آیتیں دوں گا, اس کے بعد ارے یہ بولو نا بھائی, کا کیا ہوا, اس کا کیا بنا, اس کا کیا نکلا نچوڑ. اس بات سے ایک بات ثابت ہوئی کیا, کہ جو میں ثابت کرنا چاہ رہا تھا, جو بہت سارے لوگوں کو بھی, سننے والوں کو بھی ثابت کرنا ہے بھائی, کیا بولنے دینا یار, میں مدعا تو رکھنے دیں مجھے, کیا کرتے ہیں. بولیے. وہ یہ ثابت کرنا چاہ رہا تھا کہ عیسیٰ اور جس سے حاضر جو نبی ہے وہ عیسیٰ نہیں ہے, عیسیٰ کی بات یہ تو میں نے بھی نہیں کہا, ارے حاضر نبی کو میں نے عیسیٰ کہا ہی نہیں, میں نے بھی نہیں. ٹھیک ہے, اور سچ والا بھی سیم پیج پہ, عیسیٰ ابن مریم قرآن کا رسول نہیں ہے, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, اچھی بات ہے. اس چیز کا میں کلیئر نہیں تھا سچ والا جی کے لیے. میں یہاں پر بات اپنی سنیے ہمارے عبدالحمید صاحب, دیکھیں میں بات بہت ناپ تول کے کرتا ہوں, اسپیسیفک بات کرتا ہوں, میں اوٹ پٹانگ بات نہیں کرتا. دیکھیں میں نے یہ کہا ہے, اور پہلے بھی کہا ہے, اب آج بھی کہا ہے, آگے بھی کہوں گا, کہ قرآن کا جو حاضر نبی ہے وہ عیسیٰ ابن مریم نہیں ہے, اتنے ڈنکے کے طور پر کہہ رہا ہوں میں, تو یہ کہا ہوں. ہاں سن تو لو نا, دیکھیں لیکن قرآن کے حاضر نبی کا نام محمد نہیں ہے, نہیں ہے, نہیں ہے. آپ سمجھے میری بات, میں نے کتنے ڈنکے کے طور پر بات کہی ہے, قرآن کے حاضر نبی کا نام محمد نہیں ہے, نہیں ہے. سچ والا جی جب آپ یہ بات کرتے ہیں نا کہ بنی اسرائیل کا آخری نبی کون تھا, عیسیٰ تھا, تو اس آیت سے ثابت ہو جاتا ہے کہ عیسیٰ کے بعد بھی کوئی نبی تھا. اس سے وہ کہاں ہے ثابت ہوتا, آخری نبی عیسیٰ ابن مریم ہے, یہ ثابت ہو رہا نا بھائی, اس کے بعد کون تھا اور وہ محمد تھا, یہ ثابت نہیں ہو رہا. کہاں ہے بھائی, وہ میں کروں گا نا اگلی آیت میں انشاءاللہ, اگلی آیت میں کروں گا. ایسا نہیں ہوا, اس کا مطلب اس آیت کو ہٹا دینا, یہ کام کی نہیں ہے کہ محمد یہ آیت ناکام ہو گئی. مطلب سچ والا جی اتنے دنوں سے عباس بھائی ہم کو سن رہے ہیں, عباس بھائی آپ یہاں پہ آ کے یہ ثابت کرے آپ نے, جو سچ والا جی کہہ رہے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم قرآن کا حاضر نبی نہیں ہے, یہی بات آپ نے کہی, جبکہ آپ کو یہ بتانا ہے کہ محمد حاضر نبی ہے. وہ میں اگلی آیت میں کروں گا نا انشاءاللہ. اس بات سے یہ کلیئر ہو گیا. اچھا یہ آیت سنیے ہمارے عبدالحمید صاحب, یہ آیت ناکام ہو گئی, چلو ٹھیک ہے, اب دوسرے آیت کی طرف جائیے, یہ آیت ناکام ہو گئی, چلیں آگے چلیں. یہ آپ کے لفظ میں نے نہیں کہا, ایسے کچھ بھی ثابت نہیں ہوا نا, کچھ بھی ثابت نہیں ہوا. وہی بات آپ کہہ رہے ہیں جو میں کہہ رہا ہوں, میں تو شروع سے کہتا رہا ہوں کہ عیسیٰ ابن مریم قرآن کا حاضر نبی نہیں ہے, میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں. قرآن کا حاضر نبی جو بھی ہے لیکن اس کا نام محمد نہیں ہے, میں نے یہ بھی کہا ہے, یہ بات میں آج بھی کہہ رہا ہوں, آگے بھی کہوں گا. جی جناب. جی جب مجھے یہ وہم لگ سکتا ہے کہ آپ نے ایسی بات کی ہے کہ عیسیٰ ہی قرآن کا نبی ہے اور عیسیٰ کے بعد کوئی نبی نہیں. میں نے کب کہا ہے یار یہ بات, اصل میں مسلمانوں کی کل ہمارے عبدالحمید صاحب, ہمارے عباس بھائی سے یہ بھی پوچھیے کہ ابھی 2 دن پہلے میں نے 3 گھنٹے کی جو تقریر کی ہے اس پر ان کا کیا تبصرہ ہے, وہاں تو اسلام کے پرخچے اڑ گئے, پرخچے. پرسوں کی اسٹریم سنے عباس بھائی آپ؟ جی میں نے کوئی سنی, میں بڑے دنوں بعد میں نے آپ کی سنی. بھائی صاحب پلیز آپ سنیے, پلیز سنیے, آپ جب بھی آئیں گے تو آپ کو کٹنگز بھی لانا ہے اور 3 گھنٹے سن کے آنا ہے, پلیز. میرے پاس ناکام ہو گئی, اب اگلی آیت کی طرف چلیے عبدالحمید صاحب, یہ کون سی آیت ہے, اگلا نمبر بولو. یار آپ بات کاٹ دیتے نا, میں بات کمپلیٹ نہیں کی تھی, میں جو بات کر رہا تھا اس آیت کے متعلق, میں یہ کہہ رہا تھا کہ جب مجھے غلطی لگ سکتی ہے, ایسی فہم ہو سکتا ہے کہ آپ بات کر رہے ہیں کہ عیسیٰ آخری نبی ہے اور عیسیٰ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے اور عیسیٰ محمد ہے, تو سننے والے بہت سارے اور بھی لوگ ہیں جن کو غلط فہمی لگ سکتی ہے. تو مجھ پہ یہ بات واضح ہوگی. عبدالحمید صاحب میں جب سے جو ہے تیلگو میں بات کر رہا ہوں, میں اردو میں بات نہیں کر رہا ہوں, شاید ہمارے عباس میں نہیں سمجھ پایا, میں تیلگو میں بات کر رہا تھا, اس لیے ہمارے ایسا آپ کو لگا اور کسی کو نہیں لگا ایسا عباس بھائی؟ سچ والا جی ڈفرنٹ لوگ سوچنے والے ہوتے ہیں. مجھ سے جیسا ڈنکے کی چوٹ پر بات کرنے والا کوئی دنیا میں نہیں ملے گا. میں اپنے لفظوں میں بڑا اسپیسیفک ہوتا ہوں, میں اوٹ پٹانگ باتیں نہیں کرتا, ناپ تول کی بات کرتا ہوں, سمجھ آئیے آپ کو؟
آپ کا علم ہوگا بہت، لیکن آپ کو ایک بات بتاؤں، کی بات نہیں کر رہا میں، ڈنکے کی چوٹ پہ بات کرنا، میرا علم کا کوئی دعویٰ نہیں ہے، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ میں اپنے الفاظ میں بڑا اسپیسیفک ہوتا ہوں، اسپیسیفک کبھی آپ ایسی جگہ پہ آئیں جہاں نیوٹرل ہو، کوئی بار بار کاٹنے والا نہ ہو، تو آپ کو پتہ لگ جائے گا۔ میں کہاں کاٹ رہا ہوں بھائی، میں آپ ہی کی بات کو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ آیت سے ثابت کچھ بھی نہیں ہے، آگے چلیے بول رہا ہوں میں، اور کیا اب ہر مسلمان کی بات کو پیچھے سے کاٹتے ہیں، پیچھے سے بولنے نہیں دیتے ہیں، کسی نیوٹرل چینل پہ مسلمان کی آواز بہت دبی ہوئی ہے یار عباس بھائی، بہت دبی ہوئی آپ کو آواز پتہ ہے، لگ جائے گا کسی مسلمان کے چینل پہ، ڈرا ہوا مسلمان ہے، دنیا پوری دنیا میں اگر آپ مسلمان دوسری ڈرا آیت ہوا بولو ہے۔ عباس بھائی، چلو آیت نمبر 2 بولو۔ اچھا 48 کی آیت نمبر 29 نکالیے انشاءاللہ تعالی، اور پہلے بھی اس میں بات ہو چکی ہوئی ہے، لیکن جن لوگوں کے دل کھلے ہیں وہ سمجھ جائیں گے، جن کے لوگ بند ہیں ان کو تو کوئی زبردستی سمجھا نہیں سکتا۔ ٹھیک ہے نکالیے 48 کی آیت نمبر 29 نکالیے، اس میں ثابت محمد ہوگا کہ رسول رسول اللہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے ثابت ہوگا کہ رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی حاضر نبی ہیں اچھا اس وقت۔ اس میں کوئی صیغہ ضمیر کا ہے، کوئی صیغہ اور ضمیر ہے حاضر کی، ایک صیغہ ایک ضمیر ہے، بتا دیں۔ سچ والا جی آپ پورا ٹائم دے دو عباس بھائی، عباس بھائی آپ نان سٹاپ بولیے آپ جی جی ترجمہ یہ ذرا اوپر کیجیے گا پڑھنے کے لیے۔ اچھا اس میں ہے ترجمہ، اچھا محمد کو ترجمے سے ثابت کریں گے آپ؟ یار سننے والوں کے لیے کس قدر کمزور ہے، ارے یار کس قدر کمزور ہے یار آپ، ترجمہ سے ثابت کریں گے؟ سچ والا جو مودودی صاحب نے کیا، مودودی صاحب کے ترجمے سے ثابت کریں گے جی۔ ان کو مودودی صاحب کا پڑھنے دیجیے، آپ عربی پڑھیے، ان کو پڑھنے دیجیے، پڑھو عباس بھائی۔ محمد اللہ کے رسول ہیں، اس میں عربی میں شاید ہے نہ ہو، محمد اللہ کے رسول، کیونکہ آپ سے پہلی بات ہو چکی ہے، جو لوگ ان کے ساتھ ہیں وہ کفار پر سخت اور آپس میں رحیم ہیں، تم جب دیکھو گے انہیں رکوع و سجود اور اللہ کے فضل اور اس کی خوشنودی کی طلب میں مشغول پاؤ گے، سجود کے اثرات ان کے چہروں پر موجود ہیں جن سے وہ الگ پہچانے جاتے ہیں۔ اتنی ہی بات کرنی کافی ہے، اس سے ثابت ہو رہا ہے جو اس کے ساتھی ہیں ان کو تم دیکھو گے کہ وہ یہ کرتے ہیں، وہ سجود کرتے ہیں، وہ رکوع کرتے ہیں، یہ حاضر کی بات ہو رہی ہے، نہ فیوچر کی بات ہو رہی ہے، نہ پاسٹ کی بات ہو رہی ہے، کن لوگوں کی؟ جو محمد کے ساتھی ہیں۔ تو جب محمد کے ساتھی بھی حاضر ہیں تو ظاہر ہے محمد بھی حاضر ہی ہے، اس سے یہ بات ثابت ہوئی کہ محمد حاضر نبی ہے، اسی قرآن کا حاضر نبی ہے۔ ایک منٹ سچ والا جی، عباس بھائی ہو گئی آپ کی بات؟ ہو گئی، ہو گئی نا؟ جی سچ والا جی، عربی پڑھ لیجیے آپ۔ میں آپ سے، میں عباس بھائی سے یہی پوچھ رہا تھا، ارے یار اب عربوں کی غلامی کرتے لیکن کبھی عربی تھوڑا تو پڑھ لیا کرو نا، کبھی تھوڑا سا سیکھ لیا کرو، اتنے زمانے سے آپ غلامی کر رہے ہیں لیکن تھوڑی تو اب تک روزانہ اگر آپ جو ہے ایک آدھا گھنٹہ اگر عربی پر نکالتے، اپنا کوالٹی ٹائم دیتے تو ایٹ لیسٹ آپ کو قرآن کی کچھ آیتیں سمجھ آتی۔ کاش مجھے غلط ثابت کرے نا تو میں نے بات کی ہے۔ ارے اس میں ہیں کہاں سے آیا؟ جتنے بھی ہیں آپ کہہ رہے ہیں اس آیت کے متن میں یہ ہیں کہاں سے آیا؟ بتاؤ کہاں سے آیا؟ کون سا لفظ ہے جو ہیں کا ترجمہ کر رہا ہے؟ یہ بتاؤ، یہ بتاؤ نا، کیونکہ ہمارے علماء، ہمارے مترجمین، سن لیجئے آپ نے کہہ دیا نا، آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے علماء جو ہے اپنی مرضی کے عقیدے گھسانے کے لیے جو الفاظ کا استعمال کرتے ہیں، مثال کے طور پر ما کان ابراہیم یہودیا، ابراہیم کے ساتھ جو کانا آیا ہے وہ اس کا ترجمہ کرتے ہیں تھا، اور ما کان محمد ان کے ساتھ جو کانا آیا ہے اس کا ترجمہ کرتے ہیں ہے۔ کیوں کرتے ہیں بھائی ایسا؟ یہ ان کی اعتقادی مجبوری ہے، اگر یہ ایسا نہ کریں تو اسلام ٹکے گا کہاں؟ یہ اسلام کے رکھوالے تو ہماری مترجمین اور مفسرین ہیں نا، کیونکہ قرآن نے جو کچھ کہہ دیا اب اس کا بھرم رکھنا ہے اپنے عقیدوں کے مطابق، یہ ثابت کرنا ہے کہ قرآن ان کی کتاب ہے، حالانکہ قرآن ان کو اون نہیں کرتا۔ یہ لاکھ کہہ لیں کہ قرآن ہماری کتاب ہے، یہ قرآن ان کو اپنا نہیں کہتا۔ آپ سمجھے میری بات؟ بلکہ سچ والا جی میں یہ کہوں گا کہ عباس بھائی کی قرآن کوئی قرآن نہیں ہے، ان کے پاس میں تفہیم القرآن ہے مودودی کی، جس کو وہ قرآن سمجھتے ہیں۔ ایگزیکٹلی، یا پھر جو ہے جاوید غامدی صاحب کا المیزان ہے، انہوں نے جو ہے یہ امیزون سے لے کے پڑھ رکھا ہے، ٹھیک ہے، جاوید غامدی صاحب ظاہر بات ہے وہی چولن بیچتے ہیں جس چولن کو لوگ خریدنا پسند کریں گے، اور کیا؟ ارے میں وہی تو کہنا چاہ رہا ہوں نا، دیکھیں میں کروں گا، میں یقیناً کروں گا بھائی، کیونکہ میں متن جانتا ہوں نا، آپ نہیں جانتے نا، میں کروں گا بھائی، کیونکہ آپ تو متن نہیں جانتے نا، آپ محتاج ہیں ان بیساکھیوں کے جو آپ کے ترجمہ نگار آپ کو بتاتے ہیں، آپ کو قرآن کے متن سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اب میں بتاتا ہوں قرآن کے متن میں کیا ہے، سن تو لیجیے، میں بتاتا ہوں۔ محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کا رسول، والذین معہ، اور جو اس کے ساتھ، مجھے یہ بتائیے کہ اس میں اس آیت کا قائل کون ہے اور اس آیت کا مخاطب کون ہے؟ مجھے یہ بتائیں، آپ جانتے ہیں مخاطب اور مخاطب کو جانتے ہیں؟ ارے میرے بھائی میں وہی تو جاننا چاہ رہا ہوں، میں آپ سے یہی تو جاننا چاہ رہا ہوں کہ اس آیت کو بول کون رہا ہے اور یہ آیت کس کے لیے کہی جا رہی ہے؟ یہ میری بات کا جواب ہے۔ مخاطب محمد ہے؟ کیا اس کا مخاطب اللہ ہے؟ یہی آپ نہیں، آپ کا عقیدہ تو ہے لیکن آپ کو پتہ ہی نہیں کہ آپ کا عقیدہ کیا ہے۔ اس آیت سے آپ کا عقیدہ دھڑام سے گر جاتا بھائی، اس میں نہ تو اللہ مخاطب ہے اور نہ آپ کا محمد مخاطب ہے۔ اگر آپ کا اللہ مخاطب ہوتا، جس طرح سے اور کئی جگہوں پر حاضر نبی کے ساتھ مخاطب ہے، تو بات الفاظ کیا ہوتے
या मोहम्मद अन्नका रसूल अल्लाह वल्लदीना माअका, माअका होता, माअहू नहीं होता। समझ आई बात? आपको बात समझ आई? वल्लदीना माअका होता, क्योंकि माअका असल में ये हाजिर का सिगा है, माअहू गायब का सिगा है। अरे मेरे भाई, यही तो आपका अकीदा है ना। इसमें ना तो मुखातिब अल्लाह है और ना मुखातब आपका मोहम्मद है, इसमें दोनों भी गायब हैं। इसमें जो कहानी सुनाई जा रही है वो कोई और ही सुना रहा है, और वो जो कहानी सुना रहा है वो असल में मोहम्मद के गुजर जाने के बाद सुनाया जा रहा है। क्योंकि जो आदमी गुजर चुका है, जो शख्सियत गुजर चुकी है, जिसका लक़ब या जिसका उर्फियत मोहम्मद है, वो गुजर गया, इसलिए वो कह रहा है कि उसके साथ वो लोग जो उसके साथ रहे वो काफिरों पर शदीद रहे और जो है आपस में रहम दिल रहे। यह है इसका रियल तर्जुमा। क्योंकि जहां माजी का जहां सेगा आएगा, जहां पर गायब की ज़मीर आएगी, ये असल में गायब का सेगा बता रहा है कि मोहम्मद इस आयत के लिखे जाते वक्त मौजूद नहीं था। समझ आई आपको बात? इसलिए गायब का सेगा है इसमें गायब का ज़मीर है। हाँ कहिए, बोलिए। अच्छा, अगर ये बात हो रही है कि माजी में वो लोग थे, वो जो रहे हैं मोहम्मद के जो साथ थे, तो फिर अगली बात ऐसी क्यों कही जा रही है कि तुम उन्हें देखोगे? ये तो कुरान का बयान अंदाज ही ऐसा है भाई। एक ही सुन तो लो ना, मैं आपको जवाब दे रहा हूँ, कुरान का अंदाज ही ऐसा है कि अरे यार सुन तो लो ना, मैं आपको जवाब दे रहा हूँ, आप सुन तो लो, मैं आप ही के सवाल का जवाब दे रहा हूँ। देखें, ये कुरान का अंदाज है। अरे यार मैं आपको इसमें तराहुम की बात कर रहे हैं ना, तराहुम की बात कर रहे हैं। मेरा क्या सवाल क्या है? आपने तराहुम की बात की ना, मैं अपनी बात को वाज़ेह रखना चाहता हूँ सुनने वालों के लिए भी, क्योंकि बहुत सारे सुनने वाले लोग हैं, उनके लिए वाज़ेह हो जाए मैं बात क्या बात कर रहा हूं। वो अकीदे वाले मोमिन है ना भाई, ठीक है, उनको क्या वादे करेंगे? कुल मिलाकर उनका मुंह बोला नबी वादे करेंगे, और क्या करेंगे? कुरान से उनका क्या ताल्लुक? आपसे मुतासिर होकर बहुत सारे इस्लामोफोब भी हैं, उनको भी सुनना चाहिए। अरे मेरे भाई आप बोलिए क्या करना है आपको? भाई यार काम की बात करो ना यार आप। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर वो कह रहे हैं कि वो रहे थे, लेकिन जिनसे ये मुखातिब हो रही है बात, वो तो हाजिर है ना, जिनसे मुखातिब। कौन है मुखातिब भाई? कौन है? जिनसे ये बात हो रही है वो मर गए हैं। जिनसे ये बात हो रही है वो क्या, वो भी मरे हुए लोग हैं? बात ये हो रही है कि तुम उन्हें देखोगे सजदा करते हुए, रुकू करते हुए। अरे मेरे भाई, मैं वही तो कहना चाह रहा था, वो प्रेजेंट है। अरे मेरे भाई, तराहुम रुक्कान सुज्जदन यब्तगून क्यों आया? फदलन मिनल्लाहि व रिदवाना सीमाहुम फी वजूहिहिम, ये सारे जो है कितने पूरे ज़मीरें किसकी हैं? मिन असर सुजूद की ज़मीर मसलुहुम क्यों आया? समझते सच वाला जी, उनको वो मसलुहुम फिल इंजील, क्या मतलब ये है इनकी जो है ये मिसालें, या जिसे आप मोहम्मद कह रहे हैं उनकी इनकी मिसालें, ये सारी बातें तौरात और इंजील में है। इसमें कहानी है, और जाहिर बात है कुरान एक कहानी के अंदाज में, आपने सुना होगा कि सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहू लिनुरियहू मिन आयातिना इन्नहू हुवस समीउल बसीर। यानी इस आयत में, और कुरान की एक दो नहीं है, सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों आयत में, एक ही आयत में कुरान हाजिर भी इस्तेमाल करता है, गायब भी करता है, जमा मुतकल्लिम भी करता है, जमा वाहिद भी करता है। ये कुरान का एक बेढंगा अंदाज है कि कुरान के बोलने और लिखने वाले को बात करने का सलीका नहीं है। वो एक ही मतलब हर तरह की ज़मीरें एक साथ इस्तेमाल करता है। ये इसमें भी वही मामला है। मैं जो बात कह रहा हूँ वो सिर्फ, वो देखें, वो जुमला सिर्फ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहू अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ारि रुहमाउ बैनहुम, इसमें जो लफ्ज़ आया है, जो ज़मीर है, वो ज़मीर गायब है। और जाहिर बात है इसकी तायीद सिर्फ इसमें नहीं बल्कि कुरान की जितनी आयतें हैं, जहाँ जहाँ भी लफ्ज़ मोहम्मद वारिद हुआ है, उन सब में जितनी ज़मीरें, जितने सेगे आए हैं, वो सारे के सारे गायब, और जो है गायब के सेगा और गायब की ज़मीरें। बात खत्म हो गई, खत्म बात हो गई। अब आपका अकीदा आपको मुबारक, कुरान से आपका मोहम्मद साबित नहीं होता, क्योंकि कुरान का नबी, उसका नाम मोहम्मद नहीं है। मैंने ये कहा जी। चलिए, इतनी बहस के बाद अब्बास भाई आप ये आयत लेकर आए, इसका तर्जुमा पढ़ रहे हैं और कह रहे हैं कि फिर कौन है? जिस किसी से भी बात, अरे मोहम्मद बताना है भाई आपको, जिस किसी से क्यों कर रहे हैं आप बात? और मोहम्मद को तर्जुमे से बता रहे हैं अब्दुल हमीद साहब, या कुरान के मतलब से नहीं बता सकते, तर्जुमे से आपको मेरी आवाज आ रही है कि नहीं आ रही? आवाज आ रही है आपको मेरी? जोरदार आ रही है। मैंने ये पूछा था, जो नेक्स्ट जो सेंटेंस था आपने उसका तर्जुमा किया नहीं? आपने तर्जुमा नहीं किया उसका? कौन सा किसका भाई? पूरा तर्जुमा पूरी सेंटेंस का कि तराहुम। अरे मैं वही तो कहना चाह रहा हूँ, इसकी आपको मिसाल दिया ना। अरे मेरे भाई सुन तो लो ना, यही अंदाज कुरान का सिर्फ इस एक आयत में ना, ऐसा बेढंगा अंदाज कुरान का इसका तर्जुमा करें प्लीज। सुन तो लो, मैं कर देता हूँ, सुन तो लो पहले। देखें, मोहम्मद अल्लाह का रसूल, और जो उसके साथ रहे और जो लोग उसके साथ रहे, वो आपस में वो जो है काफिरों पर शदीद और आपस में रहम दिल रहे। तराहुम, तू देखेगा उन्हें। अब ये मुझे बताइए, तरा ये जो है ये मुफरद का सेगा है, ये इसमें तराहुम, ये तरा कौन है? कौन देख रहा है? कौन देख रहा है? इसका जवाब दो। तुम देखोगे नहीं, ये तुम जमा का सेगा नहीं है। तराहुम
यानी उन लोगों को तू देखेगा, ये तरा कौन है, तू देखेगा, कौन देख रहा है, कौन देख रहा है? करते जाए ना तर्जुमा, एक एक बात पे सवाल है ना, पूरा बोलो ना यार, जवाब दो ना। देखिए मैं वही तो कहना चाह रहा हूँ, आपने सारी बातें आ गई, एक लफ्ज पे सवाल नहीं करेंगे, पूरा पढ़ेंगे आप। वही तो कहूँ ना, तू देखेगा उन्हें जो रुकू की हालत में, सुजूद की हालत में, यब्तगूना, वो ढूंढ रहे हैं अल्लाह के फजल को और उसकी जो है खुशनुदी को। सीमा हम, उनकी जो है पेशानी या उनके जो है सीमा, एक्चुअल इसके माना कुछ और है, लेकिन मैं जो माना मारूफ है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। उनके चेहरे पर कोई एक असर है, किसका असर है, किसकी जो है, किसका, वो जो कहते हैं कि उनके सुजूद की वजह से जो असर उनके चेहरों पर होता है, तो उनको देखेगा। ज़ालिका मसलहुम फित तौरात, वो ये मिसाल है तौरात में और वो मिसाल है इंजील में। कज़रइन अखरज शतहु फआज़रहु फस्तग़लज़ फस्तवा अला सूक़ी, यहाँ पर तो इसकी मिसाल कुछ और दी जा रही है। यहाँ पर जितना कुछ आया है तू देखेगा उन्हें, मैं आपसे यही जानना चाह रहा हूँ कि ये तू कौन है? मेरा ये सवाल है कि अगर वो गुजर गए हैं लोग, तो कैसे वो जो मुखातिब है उसको कैसे कहा जा सकता है कि तुमने देखा? नहीं, बात ये है, इसका मतलब आप अंधेरे में टटोलना चाह रहे हैं, नबी मिलता क्या? क्या बात है? नहीं, आप लोग क्या कर रहे हैं? अरे मेरे भाई, तू कौन है मैं ये जानना चाह रहा हूँ। क्या तू मोहम्मद है? ये सुन लीजिए, तराहुम में जो तू आया है ना, तू देखेगा उन्हें, ये तू कौन है? तराहुम कौन है? मोहम्मद है? क्या तरीका हुआ सच वाला जी? अगर वो है तो फिर कौन होगा? वो मोहम्मद ही। ये क्या अंदाजे लगाने के बैठे आप यहाँ पर? मैं यही तो कहना चाह रहा हूँ ना, मुसलमान फ्रस्ट्रेट हैं, मुसलमान जो है ये इतने डेस्परेट हैं कि वो किसी सूरत से जो है अपने नबी, जिसका नाम उन्होंने मोहम्मद रख लिया है, ऑलरेडी रख लिया है, अब उसको किसी तरह से कुरान से साबित करना है। अरे कुरान से साबित नहीं होता, अब परेशान है, गम में है, गुस्से में है, इसलिए इतने ज्यादा जो है मुझ पर गुस्सा निकालते हैं। यार मुझ पर गुस्सा क्यों निकाल रहे हो भाई? मैंने क्या बिगाड़ा आपका? मैं तो कुरान पढ़ के सुना रहा हूँ आपको, मैं बता रहा हूँ कि आपका मुंह बोला नबी कुरान से साबित नहीं होता, साबित नहीं होता भाई, किसी भी आयत से नहीं होता। ये आयत इतनी क्लियर है कि जो मोहम्मद क्लियर है, आपको पता ही नहीं है आपने क्या लिखा है। करते रुकू करते देखते हो तो ये देखोगे, ये तो कौन देखते हैं भाई? अकेला आदमी है। अरे मेरे भाई वो अकेला आदमी। देखें हमारे अब्दुल हमीद साहब, देखें ये जो बार बार अब्बास भाई जो कह रहे हैं ना, मैं उसी का जवाब दे रहा हूँ। ये इस आयत के पहले हिस्से में जो कुछ कहा गया, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहू अशिद्दाउ अलल कुफ्फारी रुहमाउ बैनहुम, मुहम्मद अल्लाह का रसूल और जो कोई उसके साथ रहे, वो कैसे थे? काफिरों पर शदीद थे और आपस में रहमदिल थे, या काफिरों पर शदीद रहे और आपस में रहमदिल रहे। किसके साथ? उसके साथ। मोहम्मद हाजिर नहीं है, मोहम्मद गायब है। मोहम्मद क्योंकि गुजर चुका है, इसलिए कुरान का ये कहानी सुनाने वाला, क्योंकि ये कहानी है, ये आयत असल में वो कहानी बता रही है जो मोहम्मद की कहानी है। अच्छा, अब रही बात ये कि तराहुम, ये तरा जो है ना, ये जमा का सिगा नहीं है। ये लोगों से ये नहीं कहा कि तुम देखो, तुम ये असल में ये झूठ कह रहे हैं, तर्जुमा कर, तू देखेगा उन्हें। अब सवाल ये है कि ये तू देखेगा कौन आदमी है? सिंगुलर पर्सन है, सिंगुलर। ये तू सिंगुलर पर्सन कौन है? तराहुम, जाहिर है मोहम्मद तो नहीं है, वो मोहम्मद तो नहीं है, मोहम्मद तो गायब है। मोहम्मद रसूल, मोहम्मद अल्लाह का रसूल, मोहम्मद तो गायब है, उसके साथ जो ज़मीर आई है वो गायब की है। मैं अब्बास भाई से यही जानना चाह रहा हूँ कि तराहुम असल में किससे कहा जा रहा है? ये मसला कुरान के साथ है। कुरान अपनी बात क्लियर नहीं कर पाता। कुरान की जितनी आयतें हैं उनमें जमा का सेगा, हाजिर का सेगा, जमा मुतकल्लिम, जमा वाहिद, उसमें गायब का, हाजिर का, सारे सेगे गड़मड़ कर देता है। यही मामला यही है कि तू अकेला मुफरद आदमी कौन है? इसका जवाब दे। जी मैं जवाब दूं? आज मुझे जवाब देना। फर्ज करें आपकी बात सही है कि ये जमा का, नहीं भाई मेरी बात सही है नहीं, आपकी बात सही होनी चाहिए। सच वाला जी, बोलो। अल्लाह ताला हौसला दे। बोलो अब्बास। तराहुम एक शख्स भी है, जो भी शख्स है वो माजी का नहीं है, वो हाजिर का शख्स है। जो भी शख्स है उससे ये बात की जा रही है कि तू उन्हें देखेगा सजदा करते हुए और रुकू करते हुए, किनको? वो अगर वो माजी में गुजर गए हैं तो कैसे वो हाजिर बंदा उनको देखेगा? अनलेस कि वो लोग हाजिर हैं। इनसे मुखातिब हो रही है, मुसलमानों से मुखातिब बात हो रही है, जो भी पढ़ने वाला है, जो भी सुनने वाला है, उससे इंडिविजुअली मुखातिब बात हो रही है कि ये सहाबा है, ये सहाबा ऐसे हैं, ये हाजिर है, जब उसके साथी हाजिर हैं तो मोहम्मद हाजिर है। ये मेरा मुद्दा है, आपने मानना नहीं मानना आपकी मर्जी है। जिनका दिल साफ ना, उनको कौन जबरदस्ती मनवा सकता है? सुमुन बुकमुन उम्युन फहुम ला यरजिऊन, वही आयत में ये है, याद आती है। क्या बात तो मैं आपको जबरदस्ती नहीं समझा सकता। कमाल है। और कोई बात है? ये मैंने अपना मुद्दा साबित हो गया। क्या बात है यार, क्या कमाल है। कुर्बान जाएं अब्बास भाई। मतलब लिखा हुआ नहीं है, आपको जबान ही बोलना है अब्बास भाई। सब यही समझे, मुसलमान यही मानते, ये बोलना है आपका। दलील ये है कि सब यही मानते हैं।
जी सब लोग मानते हैं, 1.8 बिलियन लोग मानते हैं भाई, सारे लोग मानते हैं। अब्बास भी मानते हैं, अब वो मुझसे मनवाना चाह रहे हैं, अब मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूँ, तो अब वो सुम्मुन बुक्मुन अम्युन मैं हूँ। अब बताइए, मैं सुम्मुन बुक्मुन अम्युन हूँ, यानी ये इनका अकीदा तर्जुमे से साबित कर रहे हैं, वो भी मौदूदी साहब के, जो कि अल्लाह मियाँ के अब्बा हैं। अल्लाह मियाँ के अब्बा ने जो तर्जुमा किया है वो उस तर्जुमे से या अपने नबी, अपने जो है मुंह बोले नबी को साबित करते हैं। अब बताओ, कुरान के मतलब से ऐसा नहीं कहीं, मैंने आपका तर्जुमा ही लिया है और आपके तर्जुमे से ही मैंने किया। मेरा तर्जुमा कहाँ है? मैंने कहा कि तराहुम जो मुफरद है, मैंने इसका जवाब दिया ही नहीं, आपने दिया ही नहीं। वो इंडिविजुअल शख्स ही है, इंडिविजुअल शख्स को मान लिया कि इंडिविजुअल है, लेकिन वो इंडिविजुअल भी कौन है? आप बताइए ना कौन है? अरे भाई मैं ये कह रहा हूं, हर वो शख्स इंडिविजुअल कौन है? हाँ, इसका मतलब इंडिविजुअल मैं आज भी हो सकता हूँ, तो क्या मैं देख रहा हूँ लोगों का ऐसा देख रहा हूँ? नहीं, ऐसा तो नहीं है। अरे मेरे भाई सुन तो लो ना, तराहुम जो है ये जो भी आया है, तरा, यरा, नरा, ये जितने भी अफाल हैं ये मुजारे के हैं। मुजारे के एक माना यानी मतलब हाजिर के भी होते हैं, मुस्तकबल के भी होते हैं। तू देख रहा है या तू देखेगा। अब इसका मतलब अगर आप ये इसको आप या मुझसे भी जो है अगर जो है इसको जोड़ते हैं, इसका मतलब मैं देख रहा हूँ या मैं देखूंगा, इसका मतलब यह है कि इसके दोनों मफहूम निकलते हैं, क्योंकि ये क्या है? मुदारे है, ठीक है, ये मुदारे का सेगा है। अब मुझे बताइए कि एक मुफरद जो मुदारे के सेगे में है वो आप भी हो सकते हैं, मैं भी हो सकता हूँ। तो आप बताइए कि क्या इससे मैं या आप अगर मुराद हैं तो क्या हम देख रहे हैं उनको जिनका जिक्र जो है इंजील और तौरात में आए? हम देख रहे हैं उनको, देख रहे हैं? नहीं होगी ना उसका जो पास है। अरे मैं वही तो कहना चाह रहा हूँ ना, आप जो कुछ साबित करना चाह रहे हैं मेरे भाई, आप इससे साबित नहीं कर रहे हैं ना, यही तो मेरा कहना है। क्या मानना है? क्या मानना है? ये हाजिर का सीगा भी है और ये हाजिर और मुस्तकबिल दोनों आता है, ये मुजारे का सेगा है। मुजारे के सेगे में दोनों तरह के माना होते हैं, मैं यही तो कहना चाह रहा हूँ। ये बात जब मुफरद के लिए है तो वैसे तो कुरान का एक मसला है, क्योंकि वो बात गड़मट करता है। अगर आप इसको स्पेसिफिक भी अगर लेंगे तो इसके ये माना होंगे, इससे मुराद आप भी हैं या मैं भी, आप और मैं भी इससे मुखातब हैं। तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि क्या मैं या आप, यानी ये जो बात कही जा रही है कि तराहुम रुक्कान सुज्जदन, यानी मतलब वो जिसे आप समझ रहे हैं कि सहाबा, हालांकि सहाबा यहाँ कुछ भी नहीं है, सहाबा यहाँ पर जो है मुराद नहीं है, वो जो भी है, क्या आप उनको अपनी आंखों से देख रहे हो? देख रहे हो? जो मोहम्मद के कहाँ है साथी? अरे मोहम्मद के साथी तो वो है ना, वो उसके वो लोग जो उसके साथ रहे। अरे मोहम्मद जो तेरे साथ नहीं है, तेरे साथ की बात नहीं हो रही, उसके साथ ही, क्योंकि मोहम्मद गुजर चुका है। हाँ, मोहम्मद अल्लाह के रसूल, मोहम्मद अल्लाह के रसूल और जो उसके साथी हैं, तो वो उस कौन हुआ फिर? भाई जो उसके साथी रहे। तो अब आप ये भी कहेंगे तो मैं आपको कहना कि इसमें जो एक लफ्ज आया है जो कि मुजारे का है, जिसके माना हाजिर के भी होते हैं, मुस्तकबल के भी होते हैं, दोनों माना है, और इसमें ये सेगा मुफरद का है। अब आप मुझे ही बताइए, आप इसका जवाब नहीं दे पा रहे हैं कि ये मुफरद लफ्ज इससे कौन है मुराद, इससे मुराद कौन है? आप मुझे देने नहीं दे रहे जवाब, मैं आपको जवाब देना चाहता हूँ। बोलिए। आपने सवाल किया, इसके हाजिर के सीगा भी है और मुस्तकबिल का सीगा भी है, जो और फ्यूचर दोनों भी है। तो क्या ये दोनों पे अप्लाई होगा इस सेंटेंस में, या एक ही पे अप्लाई होगा? क्या कहा आपने? ये जो सेंटेंस जो बात की जा रही है, ये दोनों सीगे इस पे अप्लाई होंगे कि या एक पे अप्लाई होगा? सुनिए, सेगा एक ही है और मुफरद के लिए है मेरे भाई। इसमें जो माना होते हैं ना, मुजारे के माना हमेशा ये होते हैं, या तो वो हाल के लिए होता है या मुस्तकबल के लिए, बैक वक्त दोनों भी हो सकते हैं। क्योंकि इसमें मुफरद का सेगा है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये मुफरद का सेगा, इससे मुराद आप भी हैं या मैं भी हूँ। तो अब जब आप और मैं मुराद हैं, क्योंकि आप भी मुफरद हैं, मैं भी मुफ्तद हूँ, इसलिए के बाद इंडिविजुअल की जा रही है। तो ऐसी सूरत में मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि क्या आप उन लोगों को इस हालत में जैसा आपका अकीदा है वो देख रहे हैं? देख रहे हैं आप? नहीं ना? मैं इसका जवाब मैं यही तो कहना चाह रहा हूँ आपसे, मैं आपसे यही कहना चाह रहा हूँ मेरे भाई। मुझे आप कहने नहीं दे रहे जो मैं कहना चाह रहा हूँ। मैं इसका मतलब इस तरह लूंगा कि ये जो सीगा इस्तेमाल हो रहा है, ये हाजिर का सीगा इस्तेमाल हो रहा है, कॉन्टेक्स्ट ऐसा है। वो क्यों? अरे मेरे भाई, हाजिर और मुस्तकबिल दोनों माना है, मैं कहना चाह रहा हूँ आपसे, मैं यही तो कहना चाह रहा हूँ। आप उसको जोड़ नहीं सकते। अगर हाजिर के लिए है भी तो ये आज के लिए भी हाजिर है, आज के लिए भी हाजिर है। ये जिससे भी बात हो रही है, ये पॉसिबल उसी के लिए हो सकता है जो उनको देख रहा है। ये आपका अकीदा है ना भाई? अरे भाई, आपका अकीदा है ना भाई? आप देख रहे हैं भाई? नहीं, क्योंकि हम नहीं ना देख रहे, हम नहीं है, ये उसी पे लाजिम आता है कि जो अच्छा मुझे बताइए। अच्छा हमारे अब्बास भाई, जी हमारे अब्बास भाई, देखिए कि उन लोगों को पूरी दुनिया में कोई एक ही आदमी देख रहा था, एक ही देख रहा था, इसका जवाब दें। एक ही देख रहा था, एक अकेला आदमी देख रहा था। भाई देखिए, जब आप ये नहीं कह सकते कि ये जमा का सेगा है, क्योंकि ये सेगा क्या है? ये मुफरद का है, वाहिद का सेगा है। तो अगर ये एक से मुराद हैं, तो कुरान में ऐसी कई जगहों पर ये बात आई है कि तू, तो इससे मुराद कोई भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है।
میں یہی بات کہہ رہا ہوں کہ اس میں حاضر اور مستقبل دونوں معنی مساوی طور پر آتے ہیں. چونکہ یہ صیغہ مفرد کا ہے تو اس کے یہ معنی ہوں گے کہ تو دیکھ رہا ہے یا دیکھے گا. تو تو سے مراد کوئی بھی ہو سکتا ہے. بس ختم ہو گئی. اور یہ انداز قرآن کا ہر جگہ رہا ہے. یہ صرف اسی آیت میں نہیں. قرآن کی بے شمار ایسی آیتیں ہیں جو قرآن میں اس قرآن کے لکھنے یا بولنے والے نے ایک ہی آیت میں غائب اور حاضر اور جمع متکلم اور واحد متکلم ایک ساتھ کر دیا, گڈمٹ کر دیتا ہے. اس کی مثال میں نے آپ کو دی. آپ بات کو کنفیوز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. کنفیوز کچھ بھی نہیں کر رہا ہوں بھائی. آپ نے اس کا جواب نہیں دیا کہ کیا وہ دیکھنے والا اکیلا تھا کوئی شخص. وہ شخص ہے جو ان کو دیکھتا ہے, جو ان کو دیکھ رہا ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا, مطلب یہ ہوا جب یہ قرآن کی آیت آئی ہے تو وہ محمد بھی موجود تھا. بھائی میرے سوال کا جواب نہیں دے رہے. اس کا مطلب اکیلا آدمی تھا. اکیلا آدمی تھا. کون تھا وہ اکیلا آدمی؟ کون تھا؟ آپ جو عقیدہ رکھ رہے ہیں کہ آپ کے نبی کے صحابہ کو دیکھنے والا ایک اکیلا آدمی تھا, بس ایک واحد صرف واحد تھا. میرا خیال ہے آپ میری بات کو سمجھ گئے ہیں. اب آپ بات کو عباس بھائی آپ کے ایمان پہ بات نہیں چل رہی یار. آپ کیا پرابلم ہے آپ کو؟ آپ سے صرف اتنا چاہتے ہیں ہم کہ آپ نے یہ بول دینا کہ ہاں بھائی قرآن میں نہیں ہے لیکن ہمارا ایمان کا حصہ ہے. حدیث کے بھنڈار سے ہمارا نبی ثابت ہوتا ہے. ٹھیک ہے بھائی, آپ کو مبارک ہو آپ کا عقیدہ, آپ کے نبی کا عقیدہ. ہم نے کب روکا ہے آپ کو؟ آپ بھلے حدیث کے بھنڈار کو مانتے رہیں, دن رات مانتے رہیں. کس نے روکا آپ کو؟ میں نے صرف یہ کہا کہ مسلمان اپنے نبی کو, منہ بولے نبی کو جس کا نام انہوں نے محمد رکھا ہے, یہ قرآن سے ثابت نہیں ہوتا کیونکہ محمد قرآن میں حاضر نہیں ہے. میں نے یہ کہا. یہ بات میں نے پہلے بھی کہی, یہ بات میں آج بھی کہہ رہا ہوں, یہ بات میں مرتے دم تک کہتا رہوں گا جب تک کہ کوئی اوتھینٹک کوئی ایسا عالم دین میری بات کا قرآن کی بنیاد پر